Yeah, still few more guys to come. One. हाँ, बाकियों को उठाना पड़ेगा, लगता है खाना खा के सो गए. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून. कैसा है वेदर आपके वहाँ पे, ठंडा है या गर्म है? एनीबॉडी सब हैविंग? बहुत है सर. आई डोंट नो, यहाँ तो चंडीगढ़ साइड इज टेरिबल, इट्स क्वाइट हॉट. और सबसे हॉटेस्ट एरिया में कौन है अभी? एनीबॉडी फ्रॉम मध्य प्रदेश, लखनऊ? और एनीबॉडी फ्रॉम कोल्ड प्लेस, JNK, कश्मीर वगैरह से कोई नहीं है? हिमाचल. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. चलो आज ही थोड़ा ग्रेन ख़त्म कर लेते हैं. सो ग्रेन में भी अगेन सिंपल क्वेश्चन आपको आता है, प्रेपरेशन, हैजर्ड्स. एंड ग्रेन में एक और चीज़ है, बिकॉज ग्रेन इज बेसिकली अ डेंजरस कार्गो. व्हाई? शिफ्टिंग. So we have been studying this angle of repose and everything. So let's see, in case we have to transport this grain. Anybody carried grain? Anybody worked in the bulk carriers? No? सारे टैंकर्स पे है, टैंकर कंटेनर्स. यस सर, हमारा तो टैंकर था. अरे सर. Yeah, mostly most of you are on tankers. So चलो, ग्रेन में भी नॉट डिफिकल्ट, एटलीस्ट जहाँ तक आपका क्वेश्चंस आर कंसर्न. So of course, if you are sailing, you got to carry grain. Then I told you, learn one voyage is enough. आप सीख जाते हो. But anyway, whatever theoretical part जो भी हमने करना है, so that we can see how these things are basically carried out. इसके साथ क्या क्या dangers हैं, what are the dangers associated. ताकि and how we can carry it safely. That's the whole idea with the cargoes. Now grain, if you see what it contains, the term grain, basically it includes your wheat, maize, corn, oats, rye, barley, rice, pulses, seeds and their processed forms, which may behave in a similar way to grain in its natural state. So all these items basically what we call totally a grain. So when we load these cargoes in bulk, now you can imagine the loading and carriage of grain cargo is basically governed by your SOLAS chapter 6 part C and supplemented by International Code for Safe Carriage of Grain in Bulk. That is what we call the grain code. So उसके अंदर भी देखिए अभी एक और कोड आ गया. So every day you are getting some new code, IMDG, IMSBC, timber, अभी आपका grain code. Now basically these books are there to help us, to guide us at how we can carry these cargoes safely. So grain के जो main hazards हैं, basically there are two hazards. If you see, lot of you may be living in or having these homes at of on the agriculture side. So उन्होंने तो wheat, very common wheat you must have handled, isn't it? पंजाब, हरियाणा and all. So you see this, जब हम इसको स्टोर करते हैं घर में भी ड्रम में डालें, and if we shake the drum, so it settles down. So same thing happens on the ship. सबसे बड़ा इसका डेंजर है, one, that as the ship moves it starts settling down, it creates a void,
and or rather the biggest danger is the shifting. And अगर उसके पास ऊपर space आ गई, फिर the ship rolls, then it has a tendency to shift. Now we know अगर कोई cargo shift हुआ at sea, वो dangerous हो जाता है, isn't it? Of course, nowadays to overcome all these problems, the ships are designed in such a way that even up to even shifting of this cargo is restrained. So in dangers, besides this, there are other minor hazards which are associated like contamination. ये नहीं है कि only this, चलो इसको तो हम ध्यान कर लेंगे. Dust explosion, fire, rotting due to ingress of water, पानी चला गया तब भी खराब हो जाएगा कार्गो. Consequent depletion of oxygen, evolution of toxic vapors. So even dust, इसकी dust is very sort of dangerous. It can even create dust explosion and it is allergic also. I remember I had a cadet. So जैसे ही grain load करते थे तो this boy could not breathe. उसको फिर loading से पहले या loading discharging port में cabin में एकदम से पूरा seal करके बंद करना पड़ता so that he doesn't get exposed to the dust. Of course, he's senior master now. So it is lot of people have reaction with this. So ये तो इसके minor hazard है. Major hazards are basically your settling down and creating a void and then shifting. चलो dust explosion तो I will not touch with you. Hazard of shifting, compartment may be full when the cargo is loaded, but due to the ship's vibration and other movements, the grain settles by about 2% of its volume, leaving space at top of the cargo. Now you can imagine your hold is full, आपने कर लिया, but when the ship moves, then it tries to settle down and then creates some sort of void, and then there are chances of this cargo shifting. So this space allows cargo to move from side to side in conjunction with the rolling and pitching of the vessel. So as the cargo shifts, the vessel lifts to one side. The shifting of grain is greatest hazard involved in carriage of grain, and all regulations जो भी आपका grain code जितने भी बने हैं contained in this code for the safe carriage of grain in bulk are directed towards limiting this shift of grain to within acceptable limits. ठीक है, up to certain limits, up to certain angle, if it shifts, then it is okay. So इसके लिए उन्होंने ship का design, what you see the bulk carriers today, construction में भी आपने पढ़ा होगा. You got these hopper tanks and you got on top also wing tanks. So there also sliding plates are there at an angle which do not allow this cargo to go to the extreme. Cargo cannot shift up to the ship side, but these rule regulations were written when the grain was mostly carried on cargo ships. Cargo ships you have seen, lower hold, twin deck, and from side to side, nothing is there to stop this grain from shifting. So उस टाइम में इस grain को carry करना, transport करना was a challenge. So और क्या कर सकते हैं हम? Suppose अगर आप जनरल कार्गो शिफ्ट में कैरी करते हो, हमें पता है कि यार शिफ्ट होगा, कैन वी डू एनीथिंग एल्स? आता है आपके मन में क्या कर सकते हैं शिफ्टिंग को रोकने के लिए? एनीबॉडी? सर बीच में डनेज वगैरह लगा सकते हैं जिससे शिफ्ट ना हो. ओके गुड, चलो सम आइडिया तो आया. और कुछ? देखिए बच्चे, एनी कार्गो इफ यू नो इट्स गोइंग टू शिफ्ट, तो हम क्या करते हैं? उसकी लैशिंग करते हैं कि नहीं करते? तो अभी आप इमेजिन कीजिए, चलो आई शो यू सम इमेजेस, कि अगर ये कार्गो मैंने होल्ड में लोड किया है एंड इफ इट इज़ गोइंग टू शिफ्ट, तो अगर मैं इसका जो सरफेस है, इसका टॉप सरफेस जो है, वहीं पे कुछ ना कुछ ऐसे एक सिंपल कुछ और कार्गो डाल देता हूँ टॉप पे, जैसे हमने न्यूमेरिकल किया था, मैं इसको ऊपर बैग्ड कार्गो डाल देता हूँ, देन वेयर दिस कार्गो इज गोइंग टू शिफ्ट. तो बैग्स उसको शिफ्ट ही नहीं होने देंगे. यही कार्गो मैं बैग में भर के उसके ऊपर रख देता हूँ, मे बी 1 मीटर 2 मीटर, एंड बैग्स को हम साइड टू साइड लोड कर देते. शिप रोल भी होने दीजिए, तब क्या होगा, बैग्स तो साइड टू साइड है. अब नीचे से तो ये कार्गो नहीं शिफ्ट हो सकता बिकॉज, और सेटल भी होगा तो बैग्स उसको दबाते जाएंगे. Isn't it? So this was one of the processes. So what we call
कि या तो हमारा शिप का डिज़ाइन ऐसा हो, जैसे आपने कहा कि डनेज के बजाय हम सेंटर लाइन बल्कहेड उसमें लगा दें, या हम इसके सरफेस को सिक्योर कर दें ताकि ये कार्गो शिफ्ट ना हो सके। सो दीज आर द बेसिकली थिंग्स विच आर डिवाइस्ड कि यार इनको कैरी तो करना है बिकॉज ये तो फूड है, ऐसा भी नहीं है कि कैरी नहीं कर सकते बिकॉज दिस वॉज फूड रिक्वायर्ड बाय एवरीबॉडी। इवन इंडिया इज टू इम्पोर्ट लॉट ऑफ ग्रेन, wheat, isn't it? So before this green revolution came, उससे पहले India was also running short, too many people, no food. So grain has a low angle of repose, 15 to 18 degree depending on the type of grain, and this results in its shifting very easily. अब हमने angle of repose पढ़ा, that means 15 to 18 degree. If the ship rolls, the cargo is going to shift. So as soon as the angle between grain surface and the horizontal exceeds the angle of repose, the grain will shift. Now this is the figure if you see. अब मैंने इसको पार्टली फिल्ड कंपार्टमेंट है, इसको हाफ ही फुल किया, तो ये तो हमने ट्रिम कर दिया, लेवल कर दिया। सपोज मैं इसको ट्रिम नहीं करता तो ग्रेन सरफेस ऐसा दिखेगा। तो मोमेंट शिप रोल्स, द मोमेंट इट रोल्स, जो उसका एंगल ऑफ रिपोज है, ये कार्गो हैज़ अ टेंडेंसी टू शिफ्ट, बट इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा शिफ्ट होने में, ये जल्दी शिफ्ट हो जाएगा कार्गो। तो एक तरफ से ये दूसरी तरफ आ जाएगा, तो ट्रांसवर्स शिफ्ट भी हुआ और वर्टिकली भी यहाँ तक चला जाएगा। तो वर्टिकल भी आपकी स्टेबिलिटी को फर्क पड़ेगा और लिस्ट भी हो जाएगी। हैजर्ड ऑफ शिफ्टिंग, व्हाट वी कॉल इज द हील और लिस्ट इज द रिजल्ट ऑफ हीलिंग मोमेंट। सो हीलिंग मोमेंट क्या, W इंटू डी, स्मॉल w वेट ऑफ कार्गो एंड डिस्टेंस बाय विच इट शिफ्ट्स, दैट इज व्हाट वी कॉल द हीलिंग मोमेंट। जितना वेट है और जितने मीटर शिफ्ट हुआ वो it will create a healing moment. So these healing moments in all the holds will add up as the cargo in all the holds will shift to same side. So total healing moments, which is basically equal to W into D, will be equal to your displacement into GG1. अभी तो आपने stability पढ़ ली है, so it is very easy to assume कि healing moment जो है it is basically equal to displacement into shift in the ship's center of gravity. अब अगर इस इक्वेशन से हम देखें तो उसी इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपकी जो एंगल ऑफ हील है दैट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर GM, इधर। सो एंगल ऑफ हील थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GM। सो अगर GM आपका लार्ज है तो एंगल ऑफ हील विल बी लेस, GM कम है तो एंगल ऑफ हील विल बी मोर, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीलिंग आर्म एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू GM। So, जितना वो ज़्यादा शिफ्ट करेगा उतनी ज़्यादा हील होंगी, बट इफ द GM इज मोर देन एंगल विल बी लेस। तो ये तो आपका था शिफ्टिंग के लिए। So, अब इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया कि अलाउएबल हीलिंग मोमेंट्स, द शिप इज अलाउड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीलिंग मोमेंट्स नॉन एज परमिसिबल और अलाउएबल हीलिंग मोमेंट्स बेस्ड ऑन आवर डिस्प्लेसमेंट एंड kg। कि एज लॉन्ग एज द हीलिंग मोमेंट्स आर लेस देन अलाउएबल हीलिंग मोमेंट्स, तो उन्होंने अब कैलकुलेट कर दिए कि यस भाई इफ द cargo is shifting it will create the healing moments, and then they see कि यार maximum healing moments जो हैं maximum list को बचाने के लिए कितने healing moment safe हैं। कि if up to ship cargo shifts and the ship is healing up to 10 degree 12 degree, चलो then it is okay, it doesn't affect the stability. So this way they naval arcs जिन्होंने डिज़ाइन किया they started calculating so what we call the allowable healing moments. We can calculate, अब जब हम कार्गो लोड करेंगे होल्ड में, so we can calculate that how much will be the healing moments. जैसे आपने इस ड्राइंग में देखा कार्गो is loaded only say half and then in the book it is given, so as per the empty space you can see what is the height of empty space and उसके accordingly आपको ग्राफ्स या टेबल दिया होता है कि this will be the healing moment if the ship rolls। इन सारे हीलिंग मोमेंट्स को हम टोटल अप कर लेते हैं एंड देन वी सी द हीलिंग मोमेंट्स फॉर द शिप आर, इफ दे आर मोर देन इट इज डेंजरस, इफ दे आर लेस देन परमिसिबल देन इट इज वेरी गुड। सो द हीलिंग मोमेंट्स फॉर अ शिप आर केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। हाउ, इधर वी फिल अप द मैक्सिमम होल्ड्स, या तो सारे होल्ड्स को कम्प्लीटली फिल अप कर दें, कोई स्पेस ही नहीं रही कार्गो को शिफ्ट होने की, और रिस्ट्रेनिंग और सिक्योरिंग द ग्रेन सरफेस, या हम ग्रेन का जो सरफेस है उसको रिस्ट्रेन कर दें या सिक्योर कर दें टू प्रिवेंट द शिफ्टिंग।
तो ये दो ही चीज़ें पॉसिबल थी। मैक्सिमम होल्ड्स हो सकता है कई बार आपका, अगर मैं सारे होल्ड्स को भरता हूँ हो सकता है शी में गो डाउन बाय हेड, मेरे को ट्रिम ना मिले, कुछ भी हो सकता है इधर इट। और प्लस हो सकता है कई बार कार्गो भी कम हो। तो इसके लिए इन दोज केसेस व्हेन दे वर कैरिंग ऑन जनरल कार्गो शिप्स देन दे यूज्ड टू सिक्योर द ग्रेन सरफेस। उसकी लैशिंग ले लो, उसके ऊपर ओवर स्टोर कर दो कुछ कार्गो, या वेरियस मेथड्स ऑफ लैशिंग और सिक्योरिंग दिस ग्रेन सरफेसेस सो दैट देयर आर नो हीलिंग मोमेंट्स। नाउ अब जो लोडिंग की प्लानिंग है, इट इज़ वेरी सिंपल। मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी लोडेड टेकन इनटू अकाउंट बाय शिप्स डेड वेट, लोड लाइन जोन्स की कितना हम कार्गो लोड कर सकते हैं एज पर द ड्राफ्ट। फिर इसको हम वी डिस्ट्रीब्यूट इन द डिफरेंट होल्ड्स, क्या भी मैक्सिमम होल्ड्स को भर दीजिए। फिर ड्राफ्ट ट्रिम को देखते हुए देन वी सी फ्रॉम स्टोरेज फैक्टर वी कैन गेट द वॉल्यूम डेप्थ ऑफ कार्गो इन ईच होल्ड। अब हमने ये क्वेश्चन कर भी लिए स्टोरेज के, स्टोरेज फैक्टर इज नोन, वहाँ से मैं हाउ मच स्पेस, अगर मैं इसको कार्गो को डालता हूँ, कार्गो फुल होता है तब भी ठीक है, नहीं फुल होता तो कितनी डेप्थ तक ये कार्गो आएगा, एंड देन आई कैन कैलकुलेट द हीलिंग मोमेंट्स। So from healing moment diagram in the grain loading booklet we found out the volumetric healing moments. अब उसको हम multiply करते हैं with the appropriate factor to compensate for vertical G and divide the corrected volumetric healing moment by Stokes factor to obtain the weight healing moment. So इससे इन सब को हम add up करते हैं, so we come to know if the total healing moments are more than allowable then it is something wrong, ये तो ठीक नहीं है। But if total healing moments are less, then it is okay. We can load and sail. Now, ये जो grain code है, this was written at the time when grain was predominantly carried on board general cargo vessels. Employing methods including saucering, bundling, strapping means कि उसके grain surface को जैसे हम cargo secure करते तो इसको भी secure करते, चाहे torque plane लगाएं, wires लगाएं, dunnage लगाएं। आपने जैसे कहा कि yes, we can keep dunnage on top, तो wires बांध दो, फिर ग्रेन कहाँ जाएगा, शिफ्ट ही नहीं हो सकता। However, modern bulk carriers designed constructed taking into problems of carrying grain into consideration. So अब इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। So we don't have to secure the ship's design is such, but हमें थोड़ा तो पता होना चाहिए कि सपोज अगर मेरे को ये जनरल कार्गो शिप में कैरी करना है, क्या कई बार क्या होता है इवन इंडिया में, तो बिग शिप ब्रिंग्स अ कार्गो, दैट शिप कैन नॉट गो इनसाइड बिकॉज ड्राफ्ट ज़्यादा, फिर उसकी हम लाइटरिंग करते हैं, ठीक है ना, बाहर खड़ा होकर छोटे छोटे शिप्स जो हैं वो उसके अलॉन्ग साइड जाएंगे, देन वी ट्रांसफर द कार्गो। So we used to do even small general cargo ships में उसको लोड करते थे, फिर again whether you have to sail for 10 miles or 12 miles, so we have to secure, कार्गो को सिक्योर करना पड़ता था। ग्रेन लोडिंग बुकलेट, अगेन दिस इज अ बुकलेट, इसके बेसिकली कंटेंट्स क्या क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या दिया होता है। सो दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द शिपयार्ड। क्या क्या दिया होता है, कर्व्स और टेबल्स ऑफ वॉल्यूम्स, वर्टिकल सेंटर ऑफ volumes and assumed volumetric healing moments for every compartment, and curves or tables for maximum permissible, ये भी उन्होंने हमें कैलकुलेट करके दे दिए फॉर वेरिंग केजेस। डिटेल्स ऑफ स्कैंटलिंग्स ऑफ टेम्परेरी फिटिंग्स, कि अगर हमने कुछ उसको सिक्योर करने के उसकी भी उन्होंने कितनी मोटी वायर लगानी है, कितनी मोटी डनेज होनी चाहिए, क्या क्या है अगर आपने उसका ग्रेन सरफेस को सिक्योर करना। एंड टिपिकल लोडेड अराइवल डिपार्चर कंडीशन, जैसे आपकी हिंदशिप में स्टेबिलिटी बुकलेट में अराइवल डिपार्चर की वेरियस एग्जांपल्स दिए होते हैं, यू कैन कम टू नो कि स्टेबिलिटी की क्या सिचुएशन है, हीलिंग मोमेंट्स कितने आते हैं अगर हम इस हिसाब से लोड करें। अदर देन ये सारे जो आपकी स्टेबिलिटी बुकलेट में वो पर्टिकुलर भी होते हैं, शिप्स पर्टिकुलर, लाइट शिप, टेबल, तो ये आपका ग्रेन लोडिंग बुकलेट। ऑफ हैंड अगर कोई आपको पूछे कि हाँ यार ग्रेन कोड क्या है, क्या है ग्रेन लोडिंग बुकलेट क्या है, क्या क्या दिया होता है, तो नॉर्मल आपके पर्टिकुलर्स, लाइट शिप, केजी, कर्व्स, टेबल्स, हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, एंड इन एडिशन आपको ये दिया होता है व्हाट इज व्हाट वी कॉल द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक हीलिंग मोमेंट्स, वो भी इसके अंदर दे दिया था। अब सबसे पहला कई बार वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन व्हाट इज डीओसी, और यहाँ पे इसे कहते हैं डीओए। अब IMDG में हमने पढ़ा था इट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस, यार एक सर्टिफिकेट इशू होता है जिससे ये पता लगता है दिस शिप
कैन कैरी दिस कार्गो और नॉट। तो यहाँ पे इसे डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन कहते हैं। तो ये भी अंडर 16 रेगुलेशन चैप्टर 6 दैट कार्गो शिप कैरिंग ग्रेन आपके पास ये DOA होना चाहिए। सो DOA है क्या बेसिकली? सेम लाइक DOC, इट सर्टिफाइज दैट अ शिप इज capable of loading grain in accordance with the requirements of the International Grain Code. And a document of authorization shall be issued for every ship loaded in accordance with the regulation of this code, either by administration or by class on behalf of administration. So basically आपके पास ये जो certificate है DOA का, it is accepted as evidence that the ship is capable of complying with requirements of these regulations. So इसके ऊपर भी आ जाता है what is DOA, write short notes on DOA. तो आप easily इसको लिख सकते हो. So many things, and it shall be accepted as evidence the ship is capable of complying with the requirements, and it shall accompany or be incorporated into grain loading manual. So grain loading manual भी होना चाहिए उसके साथ document of authorization. It is certifying that ship is capable of loading grain as per the grain code. अब ये है कि अगर शिप में ये document of authorization नहीं है, so it is not so अगर ये हमारे पास नहीं है, then what do we do? It is basically not DOC, it is DOA. अगर ये नहीं है मेरे पास, कैन आई कैरी द कार्गो और नॉट, तब भी आप कैरी कर सकते हो। फिर सिर्फ क्या होगी कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है थोड़ी सी फ़र्क हो जाएंगी। तो तब क्या होगा? तो वहाँ पे उन्होंने ये भी सारा मेंशन किया है कि यस, इन केस द शिप इज नॉट हैविंग DOA without document of authorization must not load grain until master satisfies the flag state or SOLAS contracting comment that the ship will. हाँ जी, anybody saying something? या सो अगर मेरे पास ये नहीं है DOA, फिर थोड़ी सी हमें और कंडीशंस वेरी हो जाती हैं, तो वो भी हम देखेंगे। अगर हमारे पास DOA नहीं है तब उसकी कंडीशन क्या है, बट आपके लेवल पे इतना नहीं है। दिस इज अगेन द स्टेबिलिटी एंड ऑल दिस कैलकुलेशंस आर देयर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेन कोड क्या है, ग्रेन लोडिंग बुकलेट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या दिया है, एंड DOA क्या है। इट्स अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन that ship is capable, and application ये किसकी शिप को है? It applies to ships, all the ships regardless of size, including those less than 500 also. So सब ships को ये अप्लाई करता है, effective from January 94. There are basically terminologies, few compartments हैं, so हर ship की, हर कार्गो की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है। so यहाँ पे something called a filled compartment trimmed. filled compartment trimmed क्या है? ये इसीलिए है कि यही टर्मिनोलॉजी, ये चीज़ें आपको रिटर्न में भी आ सकती हैं एग्जाम में, राइट, और ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट इज़ फील्ड कंपार्टमेंट ट्रिम्ड। सो फील्ड कंपार्टमेंट ट्रिम्ड इज लाइक दिस, यार ये कंपार्टमेंट फिल्ड, बट अगर हम इसमें इमेजिन हम कार्गो लोड करते हैं तो कार्गो तो यहाँ से सीधा ऐसे चला जाएगा, तो ये स्पेस तो खाली रह जाएगी। सिमिलरली दिस कार्गो विल स्लाइड एंड इट विल गो लाइक दिस, सो दिस स्पेस कैन बी एम्प्टीड। बट अगर मैंने ट्रिम किया नहीं, जैसे मेरा कार्गो इस लेवल पे पहुंचता है, देन वी पुट द मैन इनसाइड। सो ये कार्गो को इस तरफ भी शवल से किस चीज़ से पुश करके इन स्पेसिस को भी भर देते हैं। देन इट इज़ कॉल्ड दैट द स्पेस इज द होल्ड इज ट्रिम। देन यू लोड, फिर थोड़ी बहुत स्पेस खाली रहेगी, मैक्सिमम स्पेस जो है जो अवेलेबल थी वो आपने भर दी। सो दिस इज व्हाट इज रिटन, फील्ड कंपार्टमेंट ट्रिम is one in which the grain after loading is trimmed so as to fill all the spaces under decks and hatch covers to maximum extent possible. 100% तो possible नहीं हो सकता, but whatever maximum extent possible, so the grain is at its highest possible level. That is called a filled compartment trim. Thus, even after trimming, there still be some void space under the tank and hatch cover, although small, and there will be still some healing moments for these compartments, although small. So ये नहीं है कि कंपार्टमेंट पूरा फुल हो गया तो 20 या 26 में अभी हीलिंग मोमेंट्स नहीं होंगे। अगेन बुक में इवन फुल है तब भी वो थोड़े से हीलिंग मोमेंट रहेंगे, बिकॉज सम स्पेसिस आर एम्प्टी, कार्गो सेटल होगा, चांसेस ऑफ दिस कार्गो शिफ्टिंग आर देयर।
Second term is the term filled compartment untrimmed. Untrimmed क्या है कि हम यार इसको भरते जा रहे हैं like this, so cargo is on its own level, जैसे जाएगा तो ये सारी स्पेसिस आपकी खाली रह जाएंगी. So this is called, if you don't fill up, of course it's a manual job. In the European American side of manpower is expensive. तो उन्होंने कहा यार ठीक है इसको छोड़िए तो बहुत कॉस्टली. तो इसलिए अगर आप इसको नहीं भरते ऐसे ही रहता है, ये स्पेस खाली रहती है. दिस इज बेसिकली लाइक अ जनरल कार्गो. आजकल बल्क कैरियर में तो यू हैव दिस विंग टैंक्स, इजंट इट. सो कार्गो यहाँ जाने के चांस ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली भर जाएगा. बट जनरल कार्गो शिप में यहाँ तो कोई टैंक्स नहीं होता, ये डेक आ गया. सो दिस इज कॉल्ड अनट्रिम्ड. दैट मीन्स कंपार्टमेंट इज फुल बट इट इज़ नॉट ट्रिम्ड, ये स्पेसिस भरी नहीं है. तो इसको लिखने के लिए द filled compartment untrimmed cargo space which is filled to the maximum extent possible in way of hatch opening, but outside the periphery of the hatch opening the grain will be at its natural angle of repose. Outside this place, outside this hatch opening, ये hatch opening तक तो आपने full कर दिया, but outside this ये जो है यहाँ पे एंगल अपना ग्रेन जितना नेचुरल एंगल उसी से रहेगी, अंदर तो नहीं जा सकता. तो ये तो रहा आपका फिल्ड कंपार्टमेंट अनट्रिम्ड. अब आ गया स्पेशली सूटेबल कंपार्टमेंट. अब स्पेशली सूटेबल कंपार्टमेंट जैसे आपके न्यू जैसे ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुई तो उन्होंने कहा यार ये तो इसको सिक्योर करना सब कुछ प्रॉब्लमेटिक. सो देन शिप्स का डिज़ाइन चेंज होना शुरू हो गया. तो नाउ दे वेल्डेड बेसिकली लाइक बल्क कैरियर यू हैव द टैंक्स, एंड यहाँ पे भी टैंक्स हैं. अब जो कार्गो को शिफ्ट होने के लिए चांसेस कम थे. ये पहले तो यहाँ तक कार्गो शिफ्ट हो सकता था, अब अगर शिफ्ट होगा भी तो ये जो बल्कहेड्स हैं, ये जो आपकी टैंक टॉप्स हैं अंडर और टैंक फिटिंग्स हैं वो इसको रोक लेंगे, इज़न्ट इट. सो दिस इज़ बिकमिंग बेटर. सो सूटेबल कंपार्टमेंट किसे कहते हैं. अब आपका आ जाता है कि व्हाट इज सूटेबल कंपार्टमेंट. स्पेशली सूटेबल कंपार्टमेंट मीन्स वन विच हैज़ एटलीस्ट 2 वर्टिकल और स्लोपिंग लॉन्गिट्यूडनल ग्रेन टाइट बल्कहेड्स coincident with the hatch side girder so as to position as to limit the transfer shift of grain. So अगर आपका शिप है जिसके अंदर ऐसे एटलीस्ट 2 वर्टिकल स्लोपिंग लॉन्गिट्यूडनल ग्रेन टाइट बल्कहेड्स हैं and the division shall be inclined at greater than 30 degree to the horizontal. So specially suitable ships include bulk carriers with wing tanks forming self-trimming hatches or oboes tankers with longitudinal divisions. फिर ये सिस्टम शुरू हुआ. देन इट वाज बेटर कि चलो अक्रॉस द ओशियन अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है ग्रेन को, सो दीज वर द शिप्स. या फिर आप ऐसा तो वर्टिकल टेम्परेरी बल्कहेड्स भी लगा सकते हैं. और कई बार यहाँ पे मैनुअल भी बना देते हैं कि डेक पे मैनुअल बनाया, यहाँ से लोड कर दीजिए. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दे ट्राइड बट फाइनली ऑफ कोर्स नाउ प्रेजेंट बल्क कैरियर्स विद दिस कॉपर साइड टैंक्स, नाउ देयर इज नो नीड to do anything. So term partly filled compartment very easy. Partly filled means we half filled refers to any cargo space wherein the bulk grain is at any level but is not filled, trimmed or untrimmed. So it can be trimmed and it can be untrimmed also. So partly filled है, अगर मैं इसको level कर देता हूँ we call it a partly filled compartment which is trimmed. Now ये तो हमने देख लिया इसके हैजर्ड्स. अब आपकी आ जाती है होल्ड प्रेपरेशन. सो इसके लिए भी होल्ड प्रेपरेशन. नाउ इट्स अ फूड ग्रेडेबल आइटम, इजंट इट, कंज्यूमेबल बाय ह्यूमंस. सो क्लीनिंग एंड प्रेपरेशन ऑफ होल्ड एंड डेक्स फॉर कैरेज ऑफ ग्रेन मस्ट बी सिमिलर टू होल्ड क्लीनिंग फॉर बल्क कार्गोज विद मच स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस. अब आपने पढ़ा था वहाँ पे ग्रेन क्लीन. तो इसके लिए इसके जो होल्ड्स हैं वो भी उसी स्टैंडर्ड तक क्लीन होने चाहिए. नो फाउल स्मेल इन द होल्ड्स. बिल्जेस मस्ट बी ड्राई, यानी कि बिल्जेस में प्रीवियस कार्गो है कुछ स्मेल आ रही है वो भी नहीं होना चाहिए. वेंटिलेशन मस्ट बी फंक्शनल. हैच कवर वाटर टाइटनेस, बस पानी गया तो ग्रेन खराब हो जाएगा. ऑल्सो थोरो चेक फॉर इंसेक्ट और रोडेंट इन्फेस्टेशन शुड बी मेड. अब आप बार बार अगर ग्रेन कैरी कर रहे हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वहाँ पे आपके शिप पे रैट्स भी हो सकते हैं, कोई छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होल्ड में हो सकते हैं. वो हुए तब भी आपके होल्ड्स फेल हो जाएंगे. सो देन यू कांट लोड. सो देन दे हैव टू डू द फ्यूमिगेशन. तो इसके लिए नॉर्मली वी डू द क्लीनिंग, वी कीप द होल्ड्स, शिप, एवरीथिंग spick and span and this
people come on the ship from the agriculture department, they see, they inspect your all these corners, bilges, so that there is no small insects or any worms or anything जो ग्रेन में वेरी कॉमन है, वो नहीं होने चाहिए. होंगे फिर वो कहेंगे चलिए आप शिप को खाली करो, देन दे विल फ्यूमिगेट द एंटायर शिप. सो उसके लिए भी प्रॉब्लम आ जाएगी. सो इसलिए वी डू द क्लीनिंग. अब इसीलिए आपने होल्ड क्लीनिंग देखी है बल्क कैरियर्स की. टफ जॉब बट इट इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज हैज फेल हुए, नो लोडिंग. So one of the most difficult and dangerous cargoes to carry in bulk are the grain cargoes. Most grains have an angle of repose of about 20 degrees from horizontal, which means if the ship rolls more than 20 degrees, the cargo will shift. And then this happens, the ship will develop a list lying on side, and still rolling will obviously cause a greater shift of cargo, which in turn will capsize the vessel. So ये danger सबसे बड़ा. So most authorities therefore request master proves that his ship is capable of remaining stable even if the grain cargo shifts. So ये सारी stability calculation करके देखी जाती है. And this is done by compiling of grain loading form, which is fully outlines the ship's stability at worst conditions. So normally इसकी loading क्या है? When you go, there is an inspector from ashore. They come and chief officer has to do all the calculation that during departure, at sea or during arrival, what will be the stability condition under various conditions. So फिर वो देखते हैं if it complies, if it is okay, then only they allow you to load the grain. So उसकी कॉपी भी लेके जाएगा. पहले तो होल्ड इंस्पेक्शन भी होगी, फिर स्टेबिलिटी की इंस्पेक्शन भी होगी, then only loading will be allowed. These are the few pictures how this, of course, loading nowadays you got sophisticated these arms. You can इनको कहीं पे भी move कर सकते हो. You can see how dusty it is. So आजकल of course when you have like you see this, so ये जो इनका loader है, you can turn it in any direction, कहीं पे भी आप load कर सकते हो. Now this is typical bulk carrier. जब यहाँ से लोड होता आएगा तो कार्गो भी इसी एंगल से पूरा का पूरा भर जाएगा. देयर इज नो एम्प्टी स्पेस. सो कार्गो विल बी, इफ यू फिल अप ऑल द होल्ड्स, सो कार्गो विल, ये देखिए. सो यू कैन, दिस इज ऑल हाइड्रोलिकली कंट्रोल्ड. सो आप इसको कहीं पे भी टर्न कर सकते. सो आई यूज्ड टू कैरी फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू यूरोप. So Great Lakes में they load, and this is very sophisticated equipments. So कहीं पे भी किसी तरह से no manual work, no manual labor, आपकी पूरी सारी की सारी स्पेसीज ये आराम से भर देंगे. Now to avoid shifting of cargo, the grain surfaces must be reasonably trimmed. So वो तो इससे शूट से ही, लोडिंग शूट से ही बिल्कुल सारी स्पेस भर देंगे. Filled compartment trimmed should be so that all the spaces under the deck and hatch covers are also filled to the maximum possible extent. तो ये तो आपका रहा कि ठीक है हमने फिलिंग कर ली, and the ship is typical bulk carrier. Then we will try to fill up as many holds as much possible. Now the cargo is stored only in the lower compartment hatch covers. ये वापस आपका जनरल कार्गो शिप्स के लिए आ गया जहाँ पे आपकी ट्विन डेक्स हैं. तो वहाँ पे भी अगर आपने लोड करना है, यू लोड इन द लोअर होल्ड, देन यू क्लोज द हैच कवर्स, ट्विन डेक कवर्स. उनको भी थोड़ा टॉर्पलिन या कुछ लगा दीजिए ताकि ग्रेन जो है नीचे शिफ्ट ना हो. उसका तरीका थोड़ा और था. सो दैट इज बेसिकली फॉर सिक्योरिंग एंड अलाउइंग नॉट फॉर दिस ग्रेन नॉट टू शिफ्ट. In partly filled compartments, surface of bulk grain should be secured by overstowing, except in cases where healing moments due to grain shift have been calculated and taken into account. So this is what we used to do. कि अगर ठीक है यहाँ पर longitudinal divisions भी लगा सकते हैं, या आप उसकी surface की securing हम देखेंगे bundling saucering क्या होती है. Now the idea is that मैंने कुछ longitudinal divisions may be fitted to reduce healing moments due to shift or untrimmed and partly filled compartments, provided each division is made grain tight, constructed according to the grain code, extends from deck to deck and extends downwards from the underside. अगर कुछ भी हमने उसको secure करना है, then I have to do it according to the what is written in the code.
And then we have to ensure before loading can comply with the intact stability criteria. She is upright and all the paperwork has completed on board. कहीं कहीं आपकी fumigation requirement भी है. Yes, sometimes charter shippers may require cargo to be fumigated. So अभी आजकल क्या, पहले तो था कई बार कि they used to do. So I remember once I was second officer to Australia. So हमारे hatches bolts fail हो गए. तो उन्होंने कहा जी चलो सारा का सारा crew everybody shift to hotel. So they will fumigate the entire ship. क्यों कि उनको होल्ड में कोई एक दो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे मिल गए थे. ऑस्ट्रेलियन तो हैं ही ऐसे, दे वांट टू मेक मनी ऑन समबडी एल्सेस एक्सपेंस. तो चलो सारे खुश, 3 दिन के लिए होटल में, और हम लोग ड्यूटी ऑफिसर लोग जेटी पे वॉच रखते थे. एंड आफ्टर 3 days ओके देन दे विल वेंटिलेट, चेक एवरीथिंग एंड देन दे स्टार्ट लोडिंग. तो ये एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द शिप ओनर. तो आजकल क्या करते हैं, ओके दे सी द क्लीनलीनेस, देन दे लोड and then they sometimes do the fumigation in transit. तो fumigation के लिए क्या किया जाता है, they put small tablets, bromine या phosphine, छोटे छोटे सैशे डाल देते हैं. तो जैसे ही उसको मॉइस्चर लगता है उन टैबलेट्स को, उनमें से गैस रिलीज होती है. दैट इज़ वेरी डेंजरस गैस, ब्रोमीन और फॉस्फीन. तो उससे क्या हुआ कि आपके ग्रेन जो है ख़राब नहीं होती, उसमें कोई इंसेक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, बट इट इज़ डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स. तो उसके लिए आपके पास सेफ्टी एडवाइस एप्लीकेशन जब उसमें उसको करना है, अगर आपका कार्गो इज फ्यूमिगेटेड, दो टैबलेट्स और वट एवर सिस्टम दे आर फॉलोइंग, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए. इट इज़ टू बी डन बाय द सर्टिफाइड फ्यूमिगेटर. एंड वो आपके आके आपको सारी एडवाइस करेंगे, हैच कवर की सीलिंग चेक करेंगे, एंड देन दे विल एडवाइस हाउ टू नॉट टू गो क्लोज टू द हैचेस. और जब आपने उसकी वेंटिलेशन करनी है तो कैसे करनी है, सो दैट you have to use this mask. So काफ़ी वहाँ पे recommendations आ जाती हैं. So qualified fumigator should be engaged. All spaces should be padlocked, sealed to prevent anyone from entering the space. So in case tomorrow you are sailing on a bulk carrier, you are carrying wheat and it is fumigated, then it becomes all the duty officer responsibility that nobody goes close to these hatches, and all these hatches are locked, sealed. यानी कोई अंदर गया एंड हंसता हुआ दिखा. एंड अगेन एक्सपर्ट chemist declares whether the space is safe or to enter. And if the cargo requires ventilation after fumigation, advice should be sought and fumigation experts in respect of the crew safety. So इसके लिए you have to be aware. And second thing is, चलो ये तो हो गया आपका fumigation का भी होता है. Sometimes again about the fuel tanks. कि नीचे हमने देखा है ऑयल में डबल बॉटम टैंक्स, दे आर फ्यूल टैंक्स. सो दे आर टू बी हीटेड फॉर ट्रांसफ़र. तो अगर आपने नीचे से उनको तेल को गर्म किया तब भी आपका कार्गो ख़राब हो सकता है. सो चीफ ऑफिसर्स दे वर्क इन लाइजन विद चीफ इंजीनियर. सो उनको सबको लोकेशन पता है, धंधे से कि आप उसको बेयर मिनिमम हीट कीजिए सो दैट हमारा कार्गो ख़राब ना हो. Fuel oil temperatures can be monitored on the fuel oil transfer pumps and they are advised to heat bare minimum जितना आपको करना है. स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के लिए नहीं है. स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कोर्स I'll send you notes that stability area, the angle of heel due to assumed shift of crane shall not be greater than 12 degrees. तो ये सारी कैलकुलेशन होती है कि करने के बाद how much maximum the ship can heel due to shift of cargo. तो वो हमने देख लिया हीलिंग मोमेंट्स, so that we can calculate कि भाई 12 डिग्री से ज़्यादा अगर कार्गो शिफ्ट भी होता है she will not heal, then it is okay. ये तो आपका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया. अगेन जब आप चीफ ऑफिसर लेवल पे आओगे तब. अब इसमें है कि स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर शिप विदाउट DOA. सो विदाउट DOA के लिए एक तो वेट ऑफ द ग्रेन लोडेड कैनॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द डेड वेट. तो यहाँ पे थोड़ी सी कंप्लायंस आ जाती है कि भाई आप फुल शिप लोड नहीं कर सकते, 1/3 ऑफ द डेड वेट ही अगर आपके पास DOA नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है. एंड ऑल द ग्रेन सर्फेसिस इन फील्ड कंपार्टमेंट मस्ट बी रिस्ट्रेन्ड बाय सेंट्रलाइन बल्कहेड. DOA नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑथराइज नहीं, यू आर अ जनरल कार्गो शिप, तो आपके पास ग्रेन लोडिंग बुकलेट भी नहीं है, DOA भी नहीं है, तब उसने कहा कि 1/3 से ज़्यादा नहीं है. फिर आपके जो ग्रेन सरफेस है वो सिक्योर होना चाहिए, या तो आप उसके अंदर सेंट्रल लाइन डिवीज़न बना दीजिए
ऑल्टरनेटली उसके सर्फेसिस को या ओवरस्टो कीजिए किसी कार्गो से या सॉर्सरिंग बंडलिंग. वी विल सी दिस so that the free, all the free grain surfaces in partly filled compartments must be trimmed also and secured by. Sir, what is this saucering? Yeah, बताएंगे. I will come to that. These are the methods of securing the grain surfaces, saucering and bundling. अगर हम कुछ नहीं कर सकते, इमेजिन जनरल कार्गो शिप है, उसमें कार्गो को शिफ्ट होने से बचाने के लिए दीज आर द कॉल्ड द सिक्योरिंग मेथड्स. को ग्रेन सरफेस को सिक्योर करने के लिए ये मेथड यूज किए जाते हैं. व्हाट वी कॉल द ग्रेन लैशिंग मेथड्स. सो ये ग्रेन लैशिंग मेथड्स क्या है? अगर तो आपका कंपार्टमेंट या तो फुल हो सकता है या पार्टली फुल हो सकता है, इजंट इट? तो ये मेथड्स हैं. एफ एंड पी मीन्स अगर फुल और पार्टली दोनों में, शिफ्टिंग बोर्ड्स, ओवरस्टोइंग, फिल्ड कंपार्टमेंट और पार्टली फिल्ड. सर्टन ये जो है बंडलिंग, सॉर्सरिंग, फीडर्स, दिस इज ओनली अलाउड फॉर द फिल्ड कंपार्टमेंट, पार्टली फिल्ड में नहीं. पार्टली फिल्ड है तो ये कर सकते हैं आप, ओवरस्टोइंग एंड ऑल. अब सबसे पहले शिफ्टिंग बोर्ड्स. शिफ्टिंग बोर्ड्स क्या चीज़ है? यार सपोज मेरा ग्रेन सरफेस यहाँ पे आना है, सो दिस इज राइट. आपकी ट्विन डेक है, राइट फ्रॉम फॉरवर्ड बल्कहेड टू आफ्ट बल्कहेड. ट्विन डेक में आप इसको नट बोल्ट से एक टेम्परेरी बल्कहेड खड़ा कर सकते हो. पीछे आफ्ट बल्कहेड पे और फॉरवर्ड बल्कहेड पे आपने इसको नट बोल्ट से लगा दिया, सो इट बिकम्स लाइक अ सेंटरलाइन बल्कहेड. सो ये ग्रेन को शिफ्ट नहीं होने देगा. तो इसके लिए भी रिक्वायरमेंट है 1/8 ऑफ द ब्रेड्थ अबव एंड बिलो फॉर पार्टली फिल्ड, एंड अगेन 1/8 और 0.6 मीटर्स इफ इट इज फिल्ड कंपार्टमेंट. तो अगर भरा हुआ है, तो ये पुराने ज़माने में जो ओल्ड शिप्स थे उनमें सिस्टम था, क्रेन से डायरेक्ट से उठा के आप इसको, यू कैन पुट इट देयर एंड देन आगे पीछे इसको नट बोल्ट से लगा सकते हैं. So these were of course tough job, that's a lot of men were required. So ये तो था आपका shifting boards. So in a partly filled compartment, division should extend both above and below the level of grain to a distance 1/8 the breadth of the compartment. ये आपके shifting boards. Ships that are suited for this method securing may have vertical brackets inside the hatch combing. So vertical brackets already welded होती थी forward and aft bulkhead पे. Forward and aft transverse bulkheads, lashing eyes material to support the division. But tough job. क्रेन तो होती नहीं थी, डायरेक्ट से उठाओ तो 8-10 आदमी चाहिए, फिर उसको लेवल करेंगे, इनलाइन करेंगे, फिर उसको बांधेंगे. देयर वाज नो ऑप्शन. ट्रांसपोर्ट तो इसको करना ही है और कोई मेथड ही नहीं था, शिप्स भी नहीं थी. सो दूसरा मेथड क्या था? ओवरस्टोइंग. ओवरस्टोइंग में क्या है? पार्टली फिल्ड कंपार्टमेंट टॉप्ड ऑफ बाय लोडिंग बैग्ड ग्रेन. तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आ सकता है? व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सिक्योरिंग ग्रेन सरफेसेस? डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम और टू ऑफ देम. तो ईजीएस्ट वाज ओवरस्टोइंग विद बैग्ड कार्गो. अभी हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था कि यार हमने ये बल्क में लोड किया हुआ है, तो इसके बाद हम टॉप में इसको यहाँ पे इसी ग्रेन को बैग्स में भर के. बट इंडिया में तो पॉसिबल है, अभी तो इंडिया भी एक्सपेंसिव हो गया, बट अदर कंट्रीज द लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इसको बैग में भरना, बैग को स्टिच करना, बैग्स की कॉस्ट, तो एवरीथिंग वाज एडिंग अप इनटू द कॉस्ट ऑफ द ग्रेन. अब यहाँ पे तो खाना मिलता नहीं है, अगर ग्रेन आप महंगा करते जाओगे वीट को तो और प्रॉब्लम थी, प्लस लेबर वाज वेरी एक्सपेंसिव. चलो थोड़ा टाइमिंग तो उन्होंने चलाया, ठीक है यार बैग्स भरिए. ये चीज़ आपको याद रखनी है. बैग्ड कार्गो मीन्स कितनी हाइट? मिनिमम 1/16 ऑफ बी और 1.2 मीटर. 1.2 मीटर तक कम से कम ये बैग ग्रेन सरफेस के ऊपर होने चाहिए. नाउ इमेजिन इफ द शिप रोल्स, कुछ नहीं होगा, ये ग्रेन सरफेस कहीं भी नहीं जाएगा. इवन ग्रेन सेटल भी होती है, ये बैग्स इसके साथ नीचे जाते जाएंगे. सो दिस वाज द बेस्ट वे ऑफ सिक्योरिंग. सर्टेन कंट्रीज इट मे नॉट बी अवेलेबल. सॉसरिंग. For reducing heeling moment, a saucer may be used in place of longitudinal division. सॉसरिंग क्या चीज़ है? अभी सॉसरिंग इज़ लाइक दिस. मैंने ग्रेन लोड किया तो मैं सरफेस को इस तरह से बना देता हूँ. सो इट इज़ वेरी इजी. ग्रेन लोडिंग करनी है, किसी भी शेप में लोड कर सकते हैं. सो ये टॉप ऑफ द दिस थिंग, ये आपका होल्ड है. सो क्लोज टू द हैच कॉमिंग आप इसको ग्रेन को थोड़ा सा ऐसे टेपर कर देते हैं सॉसर की टाइप में, एंड देन इसके अंदर आप बैग्ड कार्गो जो है कार्गो बैग्स में भर के उसको हम डाल देते हैं. सो दिस इज़ फॉर फिल्ड कंपार्टमेंट्स.
filled and partly filled में के लिए भी कर सकते हैं. So saucering is basically for, if you see in the list, saucering is for filled compartments. क्यों? इसको हमने ऊपर ही रोकना है. हमने टॉप तक इसको भर दिया कार्गो को, एंड देन यहाँ पे आपकी जहाँ पे फोमिंग आती है, हैच कवर जहाँ पे बैठना है, यू हैव सीन दिस. वहाँ तक हम इस कार्गो को थोड़ी ऐसी शेप देते हैं, एक सॉसर टाइप की, एंड बैग्ड ग्रेन बैग्स जो है भर के डाल देते हैं. तो इन्होंने कहा यार ये भी अगेन वही कॉस्ट आ गई. बैग को भरो, उसको स्टिच करो, फिर डालो, फिर लोड करो, फिर अनलोड करो. तो उसने कहा यार इस बैग्स को निकालो, इसकी बजाय यहाँ पे ऐसे करके सीधी एक टॉर्पलिन या कोई सेपरेशन क्लॉथ अच्छा मोटा वाला डबल लेयर में रख दो, साथ में डनेज डाल दो, इजंट इट, और इसके नीचे वायर्स लगा दो. अब इसके ऊपर सीधा बल्क ग्रेन डाल दो, और फिर ये जो आपने सेपरेशन क्लॉथ या टॉर्पलिन डाली है उसको वापस लेके एक गठरी बना दो. तो दैट इज़ कॉल्ड बंडलिंग. सॉसरिंग भी उन्होंने कहा डिफ़िकल्ट थी, स्ट्रैपिंग एंड लैशिंग तो बाद में देखेंगे. फिर उन्होंने कहा ये बंडलिंग. Bundling is basically filled compartment shifting prevented by bundling the grain cargo. A bundle of similar bulk cargo is made by lining a saucer with tarpaulin or similar material with suitable means of securing. अब ये कैसी दिखती थी बंडलिंग में अगर देखिए, तो यहाँ पे हमने अगेन tarpaulin या सेपरेशन क्लॉथ रख दिया, नीचे डनेज रख दी, isn't it? So and यहाँ पे लैशिंग वायर जो थी, अब आपने इसको करके इसके अंदर बल्क ग्रेन डाल दिया सीधा, एंड फिर इसको ऊपर लेके यहाँ से जो भी आपकी वायर्स थी उसको वापस बांध दिया, बिकॉज हमने डनेज रखी है, तो वायर्स इसको काटेंगी नहीं, तो डनेज के साथ था. सो दिस इज़ बेसिकली अ बंडलिंग. एंड उसके बाद एक और मेथड था सिक्योरिंग बाय वायर मैश. सिक्योरिंग बाय वायर मैश, यू कैन सी दिस. अब मेरा ये कार्गो होल्ड है, ये फॉर हाफ बल्कहेड, ये शिप साइड शेल प्लेटिंग. तो यहाँ पे हम पार्टली फिल्ड कंपार्टमेंट में इसको वायर मैश भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक डनेज मोटी वाली लकड़ी रख दी, एंड ये वायर जो है नीचे साइड फ्रेम पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीचे, उसकी भी स्पेसिफिकेशन है कि वहाँ से नीचे से आई ऊपर, दोनों तरफ से वायर्स आ रही हैं, और यहाँ पे आपने टर्न बकल लगा दिया, बीच में वायर मैश डाल दी, और जहाँ पे ये वायर आ रही है वहाँ पे हमने ये डनेज रख दी. तो ये वायर मैश भी है, डनेज भी है, टॉर्पलिन भी है, आपका कार्गो कहीं नहीं जा सकता. बाय स्ट्रैपिंग एंड लैशिंग अगेन, तो नॉर्मली हमें पता था इतनी हाइट तक कार्गो आएगा, तो हम पहले यहाँ से ये वायर्स को शैकल कर देते थे बल्कहेड, एंड ये वायर्स को ऊपर पकड़ लीजिए. जब लोडिंग हो गई फिर यहाँ पे आपने डनेज, टॉर्पलिन एंड वापस इसको टर्न बकल्स को बांध दिया. तो आजकल nobody does it because ships are designed in such a way कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कोड में है इन केस कहीं छोटे छोटे पोर्ट्स हैं, स्मॉल पोर्ट्स या स्मॉल शिप्स हैव टू टेक द कार्गो इनसाइड. ऑफ कोर्स नाउ तो फ्यूचर तो अगर आप देखिए इवन इन कंटेनर्स, नाउ यू कैन टेक दिस कार्गो इन कंटेनर्स. बल्क कंटेनर है, इसको पूरे कंटेनर को पूरा भर दिए, ऊपर से देयर मैनुअल टाइप्स, जैसे आपके टैंकर्स होते हैं ऑयल कैरी करते पेट्रोल पंप्स पे, टैंक कंटेनर्स आर लाइक दैट. उसके अंदर आपने बल्क ग्रेन डाला शूट के साथ, एंड कहीं पे भी गांव विलेज कहीं पे भी पहुंचा सकते, जहाँ पे भी भूखमरी है. बट अदरवाइज शिप्स के लिए उन्होंने कहा था दिस वाज द, एंड एक्चुअली दीज मेथड्स वर यूज्ड दोज डेज. Tough था, that's why ship used to stay in port long time. Shore people will come, lashing gangs, ship's crew, everyone. Finally, USA, India grain लेके आओ, very happy कि यार सब ठीक ठाक से आ गया. So everyone used to feel very happy. तो ये तो आपके these are the various methods by securing wire mesh or by bundling. So these are the methods. तो इसका क्वेश्चन आपको यही आएगा, what are the hazards, hold preparation and securing of the grain surfaces. What are the various methods of securing and describe one or two of them. तो आप इसको अच्छा स्केच बना सकते हो, दिखा सकते हो, that's all. चलो ठीक है. तो ग्रेन में ज़्यादा नहीं है, तो आपके लेवल पे
आपको इतना आना चाहिए होल्ड प्रेपरेशन कैसे करनी है एज अ ड्यूटी ऑफिसर, क्या क्या मैंने देखना है, डस्ट मशीनरी एवरीथिंग, उसको मैंने अपनी डस्ट से बचाना है, अपने आप को डस्ट से बचाना है। एंड देन ड्यूरिंग द ट्रांजिट हैच कवर्स सारे जो हैं वाटर वेदर टाइट होने चाहिए, सो दैट देयर इज नो लीकेज, नो वाटर गोज बिकॉज इट स्पॉइल द कार्गो। एंड सिक्योरिंग, अगर पार्टली फिल्ड है इस टाइप का शिप है तो दैट्स ऑल। चलो, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको रहता है ग्रेन के ऊपर, तो प्लीज़ पढ़ लीजिए। नहीं समझ आया लेट मी नो, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो ऐसा नहीं करना कि अरे मैंने तो बल्क कैरियर पे, मैं तो टैंकर पे ही काम करना है तो हमने क्या करना। बट एग्ज़ाम के लिए बच्चे दे कैन आस्क यू एनीथिंग, दे कैन क्वेश्चन यू कि हाँ जी ग्रेन क्या होती है। सो इट्स वेरी सिंपल, नॉट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू कि हाँ जी ये है ग्रेन कोड क्या है, ग्रेन लोडिंग बुकलेट क्या, उसके कंटेंट्स भी थोड़े से, हीलिंग मोमेंट्स क्या होते हैं, हाउ डज द हीलिंग मोमेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय either filling up the compartments or by securing the grain surfaces. So healing moments means we do not allow the grain to shift in the hold. That is what basically how to restrict or restrain the healing moments or reduce the healing moments. shift ही नहीं होगा तो healing moments जो अपने आप जो कम हो जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। एनी क्वेश्चन? या चलो मैं ये आपको नोट्स भेज दूंगा आज, सो प्लीज़ पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत याद कर लीजिए डायमेंशंस, एंड अच्छे स्केच बना के आधा पेज एक पेज अगर आप लिख सकते हो फैंटास्टिक, गुड, नॉट सो डिफ़िकल्ट। बट अगर किसी को नहीं समझ आता प्लीज़ डू लेट मी नो कि सर ये चीज़ नहीं समझ आई, इज़न्ट इट? हैज़र्ड्स आर वेरी सिंपल, शिफ्टिंग, सेटलिंग, कंटेमिनेशन, अगर माइनर हैज़र्ड्स, डस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीक बच्चे आई विल प्रेफर टू स्टार्ट योर टैंकर न्यूमेरिकल्स पहले करते हैं, फिर थ्योरी बाद में करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, ताकि आपके पास इनफ टाइम है टैंकर न्यूमेरिकल्स को समझने का, प्रैक्टिस करने का, फिर थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी सिंपल, सो प्लीज़ कीप दैट ASTM छोटा सा येलो कलर की बुक आपके पास होगी। ठीक है, नहीं है तो लेट मी नो, आई विल। नहीं सर, वो वाली तो नहीं रहेगी। अच्छा, then anybody has got the soft copy can send, or you want me to give you the soft copy on your group? तो व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैं STM वाला आपके ग्रुप में डाल दूंगा। सो आज के लिए ये वाले नोट्स प्लस ASTM टेबल्स आपके ग्रुप में आ जाएंगे आज, या आई ट्राई टू सेंड इट टुडे। ओके सर, चलो, ओके डियर, बाय बाय देन, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय बच्चे, बाय थैंक यू सर। बाय, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, वेलकम।